हेलो बच्चों, वेलकम टू टेप ट्यूटोरियल। माय नेम इज़ भाविका पटेल। आज हम स्टार्ट करते हैं 9 साइंस चैप्टर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म? आंसर है, फॉर इजियर एंड कन्वेनियंट स्टडी वी क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो क्यों क्लासीफाई करते हैं? तो हमें इजी और कन्वीनियंट रहे, इसलिए स्टडी कन्वीनियंट रहे, इसलिए हम क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ रेंज ऑफ वेरिएशन दे हैव यू सी लाइफ फॉर्म अराउंड यू। तो फर्स्ट है स्मॉल कैट एंड बिग काउ, बी ग्रास एंड बनियन ट्री, सी ब्लैक क्रो एंड ग्रीन पैरट। वो एग्जांपल है वेरिएशन, यू सी लाइफ फॉर्म अराउंड। हमारे आसपास देखें तो स्मॉल कैट और बिग काउ का एग्जांपल है, स्मॉल बिग का। फिर ग्रास एंड बनियन ट्री का, ब्लैक क्रो एंड ग्रीन पैरट वो दिए है। आगे, what do you think is more basic characteristic of classifying organism? A, place where they live, B, the kind of cell they are made up of. Why classification based on living place is more basic, as there can be wide variation in organism live in given place. Okay, आगे, what is the primary characteristic on which the first division of organism is made? Answer है, nature of cell is primary characteristic on which the first division of organism is decided. Based on criterion, life form can be classified into prokaryotes or eukaryotes. Okay, आगे, on that basis are plant and animal out into different categories. Answer है, mode of nutrition and presence of absence of cell wall, वो categories. Okay, आगे, which organism are called primitive and how are they different from so called advanced organism? आंसर है, ऑर्गेनिज्म विथ सिंपल सेल्यूलर स्ट्रक्चर एंड नो डिवीजन ऑफ लेबर आर कॉल्ड प्रिमिटिव। ओके, एंड एडवांस ऑर्गेनिज्म लाइक मैमल्स हैव मिलियंस ऑफ सेल, दे आर डिफरेंट ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम फॉर डिफरेंट बायोलॉजिकल फंक्शन। आगे, विल एडिक्ट organisms be the same complex organism? Why? Yes, advanced organism means greater degree of evolution which lead to more complexity. तो इवोल्यूशन तो जो बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं उसे हम इवोल्यूशन कहते हैं। तो क्या है, वीड क्वेश्चन में है कि ऑर्गेनिज्म भी सेम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। वाई? तो यस, एडवांस ऑर्गेनिज्म मीन्स ग्रेटर डिग्री ऑफ इवोल्यूशन विच लेड टू मोर कॉम्प्लेक्सिटी। आगे, व्हाट इज द क्राइटेरियन फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एज बिलोंगिंग टू किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा? It is the presence of absence of a well-defined nucleus. It is the presence of absence of well-defined nucleus. Monera has no nucleus membrane, while Protista show well-defined nucleus. Monera जो no nuclear membrane and Protista show well-defined nucleus. Okay, आगे, in which kingdom will you place an organism with single cell, eukaryotics and photosynthetic? तो वो है प्रोटिस्टा, उसमें यूकैरियोटिक है और फोटोसिंथेसिस सिंगल सेल से। ओके, आगे, यानी कि यूनिसेल्यूलर है। आगे, इन द हियरची ऑफ क्लासिफिकेशन
Which grouping will have smallest number of organism will with a maximum of characteristic in common and which will have largest number of organism. हमारा आंसर है organism belonging to kingdom Monera will have small number of organism with a maximum of characteristic in common and kingdom Animalia will have largest number of organism. आगे which division among plant has the simplest organism? तो आंसर है थैलोफाइटा और अलगाई, जिसमें प्लांट सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है. आगे हाउ आर टेरिडोफाइटा डिफरेंट फ्रॉम द फेनेरोजम? आंसर है टेरिडोफाइटा हैव नेक्ड एम्ब्रियो एंड inconspicuous reproductive organ, whereas phanerogerms have well differentiated reproductive organ and covered embryo. आगे how do gymnosperm and angiosperm differ from each other? Seeds are naked gymnosperm and are covered in angiosperm. तो जिम्नोस्पर्म में हम सीड्स देख सकते हैं, वो बाहर के लेयर में ही होते हैं और एंजियोस्पर्म में कवर्ड होते हैं और फ्रूट से कवर हो जाते हैं, वो इनसाइड होते हैं. आगे हाउ डू पॉलीफेरन एनिमल्स डिफर फ्रॉम सिलेंड्रेट एनिमल? एनिमल फ्रॉम पॉलीफेर सो सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन while those from Coelenterata show tissue level of organization. In Polyphera there is no division for level, while Coelenterata some division of level is seen. Polyphera do not have coelom while Coelenterata have coelom. ओके, ये उसका डिफरेंस है. आगे हाउ डू एनेलिड एनिमल डिफर फ्रॉम एरेथ्रोपोड? तो एरेथ्रोपोड और एनेलिडा के डिफरेंस में क्या है? तो एक्जोस्केलेटन प्रेजेंट है एरेथ्रोपोड में और एनेलिडा में नो स्केलेटल. फिर एरेथ्रोपोड में बॉडी इज सेगमेंटेड इनटू हेड, थ्रॉक्स एंड एब्डोमेन और एनेलिडा में बॉडी इज सेगमेंटेड इनटू रिंग. फिर एरेथ्रोपोड में sexes can be separate or can be on the same animal और एनेलिडा में आएगा हर में फोडाइट. ओके, तो ये उसका डिफरेंस है. आगे व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स? एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में क्या डिफरेंस है? Amphibians adapted to live in water and land can breathe by skin in water, and reptiles में can live in water but need to come and surface to breathe in oxygen. ब्रीथिंग के लिए ऑक्सीजन करते हैं, ठीक है, रेप्टाइल्स, और उसमें ब्रीथिंग के लिए स्किन होती है. फिर एम्फीबिया स्किन इज मॉइस्ट एंड सॉफ्ट, रेप्टाइल्स में स्किन इज हार्डन. एम्फीबियस में रेस्पिरेशन इज आइदर थ्रू गिल्स और लंग्स, और लंग्स और गिल्स से रेस्पिरेशन होता है, और रेप्टाइल्स में रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स. कैन जम्प, एम्फीबियन जंप कर सकते, मूव बाय क्रॉलिंग. एम्फीबियंस डेवलप इनडायरेक्ट थ्रू tadpole stage, and reptiles में develop is direct with no intermediate stage in life cycle. ठीक है. आगे क्वेश्चन 4, what are the difference between animals belong to aves group and those in the mammalia group? तो एव्स और मैमल्स में क्या डिफरेंस है? तो एव्स में बॉडी इज कवर्ड विथ फेदर्स और मैमल्स में बॉडी इज कवर्ड विथ हेयर्स. बीक इज प्रेजेंट, टीथ एब्सेंट,
और मैमल्स में टीथ प्रेजेंट, बीक एब्सेंट है। फिर एव्स में फोर लिम्स मॉडिफाइड फॉर फ्लाइंग, वो फ्लाई कर सकते हैं क्योंकि फोर लिम्स होते हैं। फोर लिम्स मॉडिफाइड फॉर वेरियस एक्टिविटी, वो फेदर्स होते हैं तो फेदर्स से फ्लाइंग कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि बर्ड्स। फिर उसमें बीक प्रेजेंट होती है और टीथ नहीं होते, और मैमल्स में टीथ होते हैं, बीक नहीं होते, ठीक है। फिर एव्स में हॉलो बोन्स फॉर फ्लाइंग, हॉलो बोन्स होते हैं फ्लाइंग के लिए, और मैमल्स में नो हॉलो बोन्स। फिर एव्स में स्ट्रीम लाइन बॉडी, और मैमल्स में बॉडी इज नॉट स्ट्रीम लाइन एक्सेप्ट इन वेल्स। हमारे क्वेश्चन आंसर यहाँ कंप्लीट हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। So student, if you have any doubts, you can ask in the comment section. I will answer it. So thank you.